Bhubaneswar, the capital city of Odisha, proud to be named as city of temples and Ekam Rakhetra from ancient age, having national as well as international name and fame. Few years ago, recognition of first smart city of the country is its another credit and was proud to host National Annual Midterm Conference of Geriatric Society of India, first annual GSI Eastern Zonal and second annual GSI Odisha State Conference 2025. The conference was scheduled for 20th, 21st and 22nd of June. The scientific session was inaugurated by the invited guests by lighting the lamp and recitation of Ganesh Bandhana for the success of conference on 20th June. The respected guests on this auspicious moment were organizing chairman of the conference Professor Dr. Purnachandra Das, Dean and Director of High Tech Medical College and Hospital Dr. Radhamadhav Tripathi, Scientific Chairman of the conference Dr. Santosh Kumar Swai, Organizing Secretary of the conference Dr. Mahesh Kumar Rath, Past President of GSI Dr. Sajesh Ashokan, and Cashier of GSI Dr. Indu J. The scientific session was started after inauguration and the first lecture was on thoughtful prescribing and de-prescribing in elderly, which was presented by Dr. Ambika Prasad Mohanty. The sessions related to health issues at old age and proper management were held in two halls simultaneously. The health problems from head to toe were designed for updating the participants. The program continued for the whole day till evening. The official inauguration day was on 21st June. Honorable Governor of Odisha, Dr. Haribabu Kambampati was invited as chief guest, and as per the protocol, national anthem was sung. All the invited guests on the dais were given flower bouquet as a token of appreciation by the organizing committee. For the success of this conference, all the invited guests gathered for lighting the lamp and seek blessings of the Almighty. The organizing chairman of the conference, Professor Dr. Purnachandra Das, welcomed the Governor of Odisha by honoring the Uttarya and ideal of Lord Ganesh. The managing trustee of High-Tech Group of Institutions, Dr. Tirupati Panigrahi, honored the guest of honor, Professor Dr. Sachidananda Mohanty, by Uttarya and idol of Lord Ganesh and vice versa. Welcome address was given by the organizing chairman of the conference, Professor Dr. Purnachandra Das. Honorable Governor of Odisha felicitated Dr. Subhash Mahapatra, Dr. Purnachandra Das, Dr. Santosh Kumar Swai, Dr. Mahesh Rath, Dr. Prasanna Kumar Rathod, Dr. Dhirendranath Maharana for the dedication towards health service. The Secretary General of GSI, Dr. O.P. Sharma, focused on the formation and growth of the association in his speech. The President of the Geriatric Society of India, Dr. Atul Kulshrestha, praised the conference and the organizers as well in his speech. Dr. Tirupati Panigrahi heartily given warm welcome to each and everyone to the land of Lord Jagannath and to the High-Tech Medical College and Hospital premises. The guest of honor, Executive Director and CEO of AIIMS Avantipura, focused on the need of this kind of association and conference. The souvenir was released by the chief guest and other dignitaries on the dais. Honorable Governor of Odisha, Dr. Haribabu Kambampati, praised the dedicated activities of the association and given thanks to each and everyone for this effort. National anthem was sung at the end of meeting in the praise of Mother India. The conference was planned from mental disorders to physical illness. Keynote address and orations were also planned in agenda. Prestigious chairman oration was given by Professor Dr. Purnachandra Das and the topic was Nanomedicine in Geriatric Care. एथिरे ईस्टर्न जोन जेरियाटिक सोसाइटी प्रथम वार्षिक सम्मेलन एवं आमर ओडिशा स्टेट ब्रांच द्वितीय वार्षिक सम्मेलन आमर एका संगे पालन करा आमर ओडिशा तथा ओडिशा बाहर प्राय 400 450 डाक्तर आसी विभिन्न विभागर मेडिसिन सर्जरी गाइनिक यूरोलोजी नेफ्रोलोजी कार्डियोलोजी ऑर्थोपेडिक्स विभिन्न विभागर डॉक्टर आसी ये पार्टिसिपेट कर कारण जेरियाट्रिक हूँ जोटा कि आमर साधारणतः वयस्क लोकों रोग 60 वर्ष ऊर्ध्व लोकों रोग तो वयस्क लोकों सब प्रकार रोग हो पारे एवं से मानकर रोगर टिके भिन्नता थाए आडल्ट लोकों अपेक्षा तांकर डोज मेडिसिन डोज बा लक्षण एवं चिकित्सा ए सब टे तफात थाए से ता विषय किसी मैनेजमेंट करहब से आम ये कॉन्फ्रेंस आयोजन करूँ ता छड़ा ये आम 4टा वर्कशॉप करूँ जैकि रिसर्च मेथडोलॉजी केमिटी जेरियाट्रिक वयस्क लोक विषय रिसर्च करहब
आउ ALS BLS माने तांकर हठात इमरजेंसी होगा हठात कार्डियक अटैक होगा ताकू केमती मैनेजमेंट हो CPR करहब सेटा भी पिला शिखाऊँ आ गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस केमिति बाहर जाइए भल फिजिशियन हो पार चिकित्सा कर वयस्क लोक जत्न नहीं पार से विषय में ट्रेनिंग दूँ आ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट है आम ये पारामेडिकल मानक बा फार्मासी नर्सेस फिजियोथेरापिस्ट एमान गोटे ट्रेनिंग दूँ जे केयर जेरियाट्रिक केयर गिवर ताने जो लोक मैंने वयस्क लोक मैंने घरे एकुटिया रोचे जो मानकर पिला माने शिक्षित पिला बाहर रोचे इंडिया रे बा इंडिया बाहर तो से मानकर बयस हो गले हठात आज देह खराब है तार जत्न केमती नहीं हेब से केयर गिवर मानक आम ये ट्रेनिंग दूँ से यू ऑथेंटिकल सर्टिफिकेट पाइबे जोड़ा नहीं कि घरे लोकंर प्राइमरी चिकित्सा देकी तापर से हॉस्पिटल को शिफ्ट करें किंतु आ गोटे बड़ कथा है वयस्क लोकंर हूँ मानसिक दुश्चिंता से मेंटल प्रॉब्लम बाहर लोनलीनेस एकुटिया जो होती से जो मनरे बहुत प्रकार चिंता आसे दुश्चिंता आसे से माने भांगी पड़ती बहुत कष्ट से संभालिया से बयस कारण से खोजे मनीष जड़े किए पाखे बसु किए कथा पचारू तांकर भल मंद बुझू यही जिनसर से आशा करे पुओ जिते दूर था आजिकल तो अवश्य पुओ सहित वीडियो भी कथा ही किंतु तथापि पाखरे पाइले से जिते खुशी होते से जिनसा केमती हो पार आम मन सांत्वना केमती देहब से विषय में आमको ट्रेनिंग दौचु केवल आम कटक भुवनेश्वर नुह ओडिशार विभिन्न दूरांतर कोरापुट भवानीपाटना बलांगीर बारिपदा सबू जिलूर प्राय डाक्तर पेरिफेरी मैंने आसा बाहर बहुत डाक्तर आस जो मैंने रूराल काम कर तो से आम ट्रेनिंग देवा द्वारा से निज एरिया वयस्क लोक चिकित्सा कर साहाय्य करे मेन जिनस सहित केमी हिस्ट्री नहीं केमी 5 मिनट कथा है मनटा सांत्वना करेंगे से इम्पोर्टाट कारण वयस्क लोक बेसी गाँ गहली रहती तो चिकित्साटा बेसी जरूरी तो से आम से चिकित्सा ट्रेनिंग दूँ जो मैंने जाकि एरिया ये विषय वार्ता देवे। Due to the development in medical sciences, the lifespan in India is gradually increasing and many health issues were arising at late age. So to face these health issues and get proper treatment, there is need of research and updates. 1980 में हम लोगों ने इकट्ठे होकर सोचा कि धीरे धीरे हिंदुस्तान की जो आबादी है वो बुज़ुर्गों की तरफ बढ़ती जा रही है। जब हम आज़ाद हुए उस टाइम तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी खाली 32 साल थी और बहुत लोग मरते थे और ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो बच्चों की होती थी। धीरे धीरे जैसे महामारियाँ कंट्रोल में आई, वैक्सीनेशन आया, न्यूट्रिशन ठीक हुआ, जैसे जैसे इलाज की सुविधाएं बढ़ती गई, सरकार ने भी स्कीमें निकाली, तो धीरे धीरे लोगों का मरना कम हुआ और धीरे धीरे लोग बुज़ुर्ग होने लगे। उस टाइम तक किसी मेडिकल कॉलेज में कहीं पे भी जीरियाट्रिक्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। हम लोगों ने इकट्ठे होकर जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। धीरे धीरे हमने जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फार्माकोलॉजिस्ट हैं, जो फार्मेसी में डील करते हैं वो लोग हैं, पैरामेडिक्स हैं, कंपाउंडर्स, नर्सेज, इन सब को बताना शुरू किया कि बुज़ुर्गों की आम आदमियों की दोनों में फ़र्क है, दोनों की केयर में फ़र्क है, दोनों की दवाइयों, उनकी डोजेज़, उनके रख रखाव, हर एक चीज़ में फ़र्क है, दोनों के न्यूट्रिशन में भी फ़र्क है। और हम लोगों ने 1998 में जब डॉक्टर कोफी आनंद ने यूएनओ में डिक्लेयर किया कि 99 विल बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओल्डर पर्सन्स, तो ये जिम्मेवारी मुझे दी गई थी और मैंने मेरे जीएसआई के दोस्तों की सहायता से मिलके प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ जीरियाट्रिक मेडिसिन, जीरियाट्रिक केयर इन इंडिया नाम की पुस्तक निकाली, जो कि सर से पांव तक सारी बीमारियां, बुज़ुर्गों की आर्थिक समस्याएं, बुज़ुर्गों के बारे में जो कानून है, बुज़ुर्गों के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, बुज़ुर्गों को जो ऐसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए, मॉर्गेज के बारे में, रिवर्स बैंकिंग के बारे में, इन सब के बारे में बताना शुरू किया। धीरे धीरे ये बढ़ता गया, धीरे धीरे जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया फैलती गई। वैक्सीनेशंस के बारे में एक पुस्तक, छोटी सी पुस्तिका निकाली और उसको नेट पे भी दिया। कई देशों की जीरियाट्रिक सोसाइटीज़ जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान वगैरह वगैरह ने हमको इस बारे में संपर्क किया, हमारे विचार जाने और कहा हमारी भी समस्याएं कुछ ऐसी है। हमने उनसे कहा हमारा ये ज्ञान ले सकते हैं और अपने लोगों को वैक्सीनेशन दे सकते हैं। जैसे जैसे नए वैक्सीन आते गए हम नई नई गाइडलाइंस निकालते गए।
कुछ समय बाद हमने जीरियाट्रिक न्यूट्रिशन के बारे में और जो मसल वीकनेस होती है सार्कोपेनिया उसके बारे में भी कई प्रकार के शोध अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स के सामने लाए और उनको बताया कि मसल वीकनेस का यानी सार्कोपेनिया का इलाज करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि ज़रूरी जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती है जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं उसका इलाज करना ज़रूरी है। हमें खुशी है सरकार ने हमारी कुछ बातों पे ध्यान दिया, धीरे धीरे करते हुए मेडिकल कॉलेजेस की और स्थापना हुई। हम जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको जागरूक करें कि बुज़ुर्गों का इलाज और आम आदमी के इलाज के बीच में थोड़ा फ़र्क है, वो उस फ़र्क को समझें और उसको ध्यान देते हुए उनका उपचार करें। To manage these health issues at geriatric age, there is need of multimodality approach of treatment and specific training for all medical professionals. हम लोग जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे हमारे कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, जैसे एक मिड टर्म एनुअल कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रहा है। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग में जो है हम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग जीरियाट्रिक के बारे में और स्टाफ की ट्रेनिंग भी करते हैं। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में हम लोग ऑनलाइन कोर्स 3 महीने का करते हैं जिसमें सबको इनरोल करके और उनको डिफरेंट डिजीज़ के बारे में ऑनलाइन बताया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग इस साल से केयर गिवर्स के लिए यानी जो बुज़ुर्ग लोगों को उनके घर पर जो सेवा प्रदान कर सकते हैं उनके लिए कर सकते हैं, जिसमें कि फार्मासिस्ट हो सकते हैं, फिजियोथेरेपी वाले लोग हो सकते हैं और अन्य दूसरे लोग भी हो सकते हैं। साथ साथ कोई भी इस ट्रेनिंग में जो केयर गिवर के यानी जो घर पर सेवा देने वाले लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने रखा है कि मैट्रिक पास का उनका खाली वो रहेगा हाई स्कूल पास, और वो जो उन्हें पूरा ट्रेन किया जाएगा 3 महीने का वो भी सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा। ये सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है ये हमारा जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया और ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी कलाबुर्गी इन दोनों से की तरफ से सर्टिफाइड कोर्स रहता है और इसमें भी हम ऑनलाइन भी ये कोर्स कर रहे हैं। एक वेस्ट बंगाल से हमारा जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया वहाँ से भी जीरियाट्रिक केयर गिवर का कोर्स चल रहा है, वो बीच बीच में चलता रहता है। उसको डॉक्टर कौशिक रंजन दास देखते हैं। और साथ साथ जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बहुत सारी अपनी किताबें जो खासकर डॉक्टर्स को उनके लिए करने के लिए जीरियाट्रिक की टेक्स्ट बुक जो कि उनको जो डिफरेंट जीरियाट्रिक की बीमारियां हैं उनमें क्या हमें इलाज देना है, क्या कैसे करना है और कैसे केयर करना है और वो बीमारियां कैसे अलग हैं आम पब्लिक से, इसके बारे में वो उसमें चीज़ें रहती हैं। The Geriatric Society of India is working throughout the country with positive response for the health issues of elderly, and each branch is also showing the dedication. In this aspect, the government and society has also a vital role to play. Nowadays, we are also celebrating a decade of the elderly population, decade for the health of the elderly population from 2021 to 2031. This is a decade and we are during this. Government of India is also trying to help these persons, elderly persons in different ways. They are giving special concessions in the travels, they are having a special support program for the elderly populations, they are having some pensions for the elderly populations, and nowadays Government of India has directed different medical colleges to develop different departments for the elderly population, elderly patients. So nowadays in India, almost all the district level hospitals, all the bigger private and the private hospitals, they are also having different geriatric departments. And for that, not only this, today we are having about 20 medical colleges in India where there is a seats for the geriatric MD in geriatric medicine. That is a very, very important, and that's why in future we are going to take care of the elderly population. So now everyone has to think on this direction, and we are lucky to have Dr. Purna Chandra Das here at Odisha, Bhubaneswar. He is working very hard on this aspect, and he has also this time he has also started the Eastern chapter of the Geriatric Society of India, and this is the first conference of the Eastern chapter of the Geriatric Society of India, and this is the another. He has also developed, he has also established the Odisha chapter of Geriatric Society of India. So these small chapters are very important, and they are the backbone for us as the Geriatric Society of India to treat the different
elderly population in different areas. The delegates are being updated by organizing workshops and conferences. The aim and objective of the society is to enhance the updates and perfect treatment to the elderly people. From a government perspective, the current MBBS curriculum advocated by the NMC has introduced geriatrics for our undergraduate students. There are postgraduate courses in geriatrics. In 2010-11, realizing the gravity of the situation, the government launched the National Program for Healthcare of the Elderly. And under this program, there are various activities which are undertaken in the public health system in India, right from the sub-center to the medical college and the regional geriatric center level. In the public health system now, you have periodic geriatric OPDs, you have a dedicated geriatric ward in all the district hospitals. That is as envisaged under the program. The program is getting implemented in stages, although progress is a little slow because of whatever constraints the government has, but the beginning has been done, and I am sure that in time to come this program will be very robust in our public health system, because the distribution of elderly is predominantly rural in India. The public health system, the sub-centers, primary health centers, community health centers and the district hospitals, they cater to this rural population. With time, the initiatives already taken by the government, I am sure, are benefiting our elderly population, and in the coming times they will benefit them more once the program is established completely and robustly in the way it is envisaged in the National Program for Healthcare of the Elderly. The scientific sessions were designed as for the need of time, and the experts of various fields were invited as guest faculties. The conference was organized for 3 days, packed with update treatments. तो आमर गत जून 20, 21, 22 भुवनेश्वर रे आमर 3 दिन धरी नेशनल एनुअल मिड टर्म जीएसआई कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज कराइथिला। एथरे भारत वर्षरु आ ओडिशा मध्यरु जेरियाटिक केयर रिलेटेड चैप्टर्स सब कवर कराइथिला। सेटा जेरियाटिक न्यूरोलॉजी टू जेरियाटिक यूरोलॉजी, जेरियाटिक कम्युनिटी केयर, जेरियाटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इवन जेरियाटिक हाउ टू मेक ए जेरियाटिक विल, इवन स्पिरिचुआलिटी सबू जिनस कवर कराइतला। आमर ये कॉन्फ्रेंस रो थीम थिला जेरियाटिक केयर फ्रॉम रिसर्च टू प्रैक्टिस। आमे जो जेरियाटिक केयर रिलेटेड रिसर्च करचु बा गवेषणा करचु ताकू केंती प्रैक्टिकली ग्रास रूट लेवल ले जेरियाटिक केयर रे इंप्लीमेंट करि परिबु, से आमर मोटो थिला बा लक्ष्य थिला। एथिरे आमर देश आ ओडिसा रु प्राय 500 डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सेस, डाइटिशियन एंड जेरियाटिक केयर गिवर आमर सामिल कराइथिले, जो माने कि तांको जेरियाटिक केयर विषय रे सबु संदर्भ मान पाठ कराइथिला। आ जेरियाटिक केयर केमती आमे स्मूथली कम्युनिटी लेवल ले इंप्लीमेंट करि परिबु सा उपरे गवेषणात्मक आलोचना कराइथिला। आमर नॉर्मल लाइफ स्पैन बा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जेरियाटिक एज रे आगुरु धर 40-50 वर्ष थिला, एबे सेटा 64 रु 70 प्लस हो गला। तो जेते दिन अधिका लोक बंचिबे सेते प्रॉब्लम आसीबो। तेणु जेरियाटिक मेडिसिन गोटे सेपरेट ब्रांच हिसाब रे उभैलाणी। तो जेरियाटिक पेशेंट मानकर धर परिस्रा रिलेटेड प्रॉब्लम हैला कि मस्तिष्कगत किसी प्रॉब्लम हैला, तो सेई आउ गोटे सब स्पेशलिटी बा सुपर स्पेशलिटी कहले भी अत्युक्ति हेबनी। जेरियाटिक न्यूरोलॉजी, जेरियाटिक यूरोलॉजी, जोटर कि मोर फोकस हो पारिबो जेरियाटिक पेशेंट मानकर प्रॉब्लम उपरे, ताकि किछि जनरल फोकस न होई कि जेरियाटिक पेशेंट मानक उपरे मोर फोकस हो पारिबो। Each and every individual participated in this conference was extremely happy and pleased from all aspects, which was fruitful for the noble effort of the organizers. जेरियाटिक है सही एज ग्रुप जोटा 60 इयर्स प्लस। एपरी गोटे इनोवेटिव कॉन्फ्रेंस आम प्लान कलु बिकज एबे लोकंकर आयु बढ़िलाठू 60 वर्ष उपर से बंचुंट एज कंपेयर टू मे बी 50 इयर्स बैक। तो एबे इंडिया एवरेज लाइफ स्पैन है 71 ରୁ 74। तो तांको ऊपर कंसंट्रेट करी जो एज रिलेटेड स्पेसिफिक डिजीजेस रोची ताकू ही कंसंट्रेट करी आमे
यही जेनेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया को फॉर्म करिचु आउ आमर ओडिशा चैप्टर अच्छी जेनेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ओडिशा स्टेट ब्रांच ता अंडर रे आमे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस एथर करिचु एटा प्रथम नेशनल कॉन्फ्रेंस जेनेटिक सोसाइटी जोटा कि ओडिशा रे करा जाउची एही कॉन्फ्रेंस रे आमे मेडिकल स्पेशलिटी रो सबु जाक विभाग को टच करिचु यथा मेडिसिन डायबिटीज एंडोक्राइनोलॉजी नेफ्रोलॉजी न्यूरोलॉजी कार्डियोलॉजी कार्डियोथोरेसिक अन्य भी अलाइड साइंसेस आमे डाइट ऊपर भी कहिचु फिजियोथेरापी कहिचु ए सबू को फॉर्म करिकी आमे गोटे 3 दिन कॉन्फ्रेंस करिचु जोतरे मोर देन 80 टॉक्स रखिचु आउ लोक आम पाखरे 300 रु 400 पार्टिसिपेंट्स आछंदी मोर देन 100 आमर स्पीकर्स अछंदी आउ मोर देन 200 आमर चेयरपर्सन्स अछंदी तो ए कॉन्फ्रेंसटा बहुत भलरे एक्सेप्टेड होईची आउ लोक माने बहुत एंथुसियास्टिक अछंती जानिया पई ए नुआ ब्रांच विषय रे जोटा कि मेनली ओनली एल्डरली ऊपर ही कंसंट्रेट करिची या द्वारा आमे चाहूचु कि लोक माने भी सचेतन हुअंतु दैट एज स्पेसिफिक डिजीजेस कौन कौन अच्छी ता विषय जानतु ओ आमर जो डॉक्टर माने अच्छी जो मैंने आसिक अटेंड करुँच से माने भी एज स्पेसिफिक जो डिजीजेस रहा से गुड़ा कौन आमिटी मैनेज करिया कथा टोटल मेडिकल साइंस को इन कनसाइज 3 दिन भितर जानी पारिबे. The last scientific lecture on 22nd June was Integrating Spirituality into Care of Older Adults, which was given by the scientific chairman Dr. Santosh Kumar Swain. Next was the valedictory session. The local and national faculties along with delegates were overwhelmed with satisfaction and given positive remarks. There was a suggestion of growth in membership for the Geriatric Society.